یا خاندان، بابرکت خاندان یا گھرانہ. تو بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے، بائبل مقدس بتاتی ہے، اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب بنی اسرائیل ملک مصر سے نکلتے، ملک مصر سے نکلنے کے بعد وہ ملک کنعان کا سفر کرتے تو راستے کے اندر بڑے مشکلات آتے، بڑی مشکلات کا سامنا جو ہے کرنا پڑتا. لیکن خدا نے یشوع کو یہ کہا کہ یہ اس قوم کو بتا دے کہ میں نے تجھے بڑی بڑی مصیبت سے نکالا ہے. آمین. میں نے تجھے بڑے بڑے دکھ سے نکالا ہے، میں نے تجھے بڑی بڑی تنگی سے نکالا ہے. میں نے جب دھوپ ہوا کرتی تھی تو میں سایہ کی طرح تمہارے اوپر رہتا تھا، اور میں جب ایسے مصریوں کو جو تمہارے پیچھے آتے تھے آگ کا بگولا بن کر جو تھا ان کے آگے کھڑے ہو جاتا تھا. میں نے تمہارے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں. آمین. تو بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے، لیکن ایسے یشوع نے کہا کہ اب رہی میری اور میرے، اونچی بولو، اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات. ہم تو کس کی پرستش کریں گے؟ خداوند کی پرستش کریں گے. اور بائبل مقدس کے اندر یشوع نے جب یہ بات کہی، اگر ہم اس کی 15 آیت پڑھے تو لکھا ہے کہ اگر خداوند کی پرستش تم کو پوری معلوم ہوتی ہے تو آج ہی تم اس سے جس کی پرستش کرو گے چن لو، اور خواہ وہی دیوتا ہو. کہا وہ دیوتا جن کو تم پوچھتے رہے، جن کی تم ورشپ کرتے رہے، اگر خدا چاہے تو ان کی پوجا کرو. بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے، خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم نے ایسے ہے برکت اور ایسا خاندان کیسے بن سکتے ہیں، اور کیا ایسا خاندان اور جو بابرکت ہو وہ کیسے ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، اس کا قواب و ضوابط کیا ہے. بائبل مقدس کے اندر اس کو کیسے بیان کیا گیا ہے. آمین. کیا بابرکت خاندان وہ ہے اور جس خاندان کے اندر اونلی ورشپ ہو، کوئی ڈرامہ نہ ہو، کوئی لڑائی نہ ہو، کوئی جھگڑا ہو. معذرت کے ساتھ یہ کلام میرے لیے بھی ہے اور آپ کے لیے بھی یکساں ہے. ایسا کوئی بات مجھے یہ نہ کہے کہ بس صاحب میں بھی معذرت کرتا ہوں کہ سارا کلام تو میرے لیے سنا ہے، لیکن نہیں، کلام سب کے لیے یکساں ہے. آمین. بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کیونکہ لکھا ہے برکت، بابرکت ایسا ہے گھرانہ، ایسا گھرانہ جو خدا کے لائق ہو، جو خدا کو پسند ہو، اور جس کے بابرکت کے لیے چند ہمیں جو ہے وہ ٹاپک دیکھے ہیں. کیا کچھ اس گھر میں ہونا چاہیے؟ کیا ایسے لڑائی جھگڑا ہونا چاہیے؟ نہیں، ایسا نہیں. کیا ایسا ہے کہ اس گھر کے اندر گانے لگے ہونے چاہیے؟ نہیں، ایسا نہیں. کیا بات سے ایسا ہوتا ہے ہم سب کو زبور لگا دیتے ہیں، جدو داستو سوئی گاٹا پدیے ادو پھر گانے چلنا شروع ہو جاتے، پھر وہ برکت گھرانہ نہیں ہے. کیونکہ لکھا ہے ایک کنویں سے 2 قسم کا پانی، اونچی بولو، ایک کنویں سے 2 قسم کا پانی نہیں نکل سکتا، بلکہ یا تو میٹھا نکلے گا یا کھارا نکلے گا. اب گھرانے کے لیے جو لفظ ہے عبرانی میں وہ لفظ ہے بیت. بیت کا مطلب ہوتا ہے گھر، اس کا مطلب ہوتا ہے گھرانہ، اس کا مطلب ہے خاندان. اور اس کے لیے ایسا ہے، یہ بائبل مقدس کے اندر لفظ خاندان ہے، یہ 100 سے زیادہ، اور ایسا ہے کہ گھرانہ 300 سے زیادہ لفظ خاندان اور گھرانہ استعمال ہوا ہے. اور اس کے لیے یونانی لفظ ہے بیکٹیریا، اور بیکٹیریا جو لفظ ہے اس کے لیے ایک اور لفظ ہے گنوس. بیکٹیریا اور گنوس، اس کے لیے مختلف لفظ ہے اوکیا، اور اس کے لیے اوکوس. اوکیا، اوکوس، بیکٹیریا اور ایسا ہے گنوس. یہ 4-5 لفظ ہیں، لیکن بائبل بتاتی ہے سب کو اکٹھا کیا جائے یہ گھرانہ بنتا ہے، یہ خاندان بنتا ہے. لیکن ہم نے کیسی بائبل مقدس میں سکھاتی ہے ہم گھرانہ کیسے جو ہے وہ بابرکت ہو سکتے ہیں، کیونکہ بائبل ہمیں یہ سکھا چکی ہے، بائبل میں بتا چکی ہے، لیکن ہم نے سمجھنے میں دیر جو ہے وہ کر دی ہے. لیکن پہلی بات یہ ہے خدا سے ڈرنے والا گھرانہ. کس سے ڈرنے والا؟ ہر وقت خدا سے ڈرتا ہو، گناہ کے قریب نہ جائے، پریشانی آئے وہ یہی کہے اسی نے دیا، پھر یہ نہ کہے خدا میں نے کیا کیا، کیا دکھ ہمارے لیے،
क्या परेशानियां हमारे लिए, क्या मुसीबतें हमारे लिए? नो, बल्कि बाइबल कहती है, और बाइबल में लिखा है खुदा से डरने वाला घराना। पैदाइश 6 उसकी 9 में लिखा हुआ है कि जब पूरा ऐसे कुराश के ऊपर एक बड़ा ऐसे तूफान बरपा हुआ, तूफान जो था वो बदी का था, तूफान जो था वो गम का था, तूफान जो था वो ऐसे है सनाकारी का था, तूफान जो था वो ऐसे है ऐसी बीमारी, ऐसा कोड़, ऐसा दुख, ऐसी मुसीबत, वो गुनाह था। बाइबल में लिखा हर शख्स ने अपना तरीका बिगाड़ लिया था, हर शख्स अपने तरीके में रहता था। हाँ, इबादत नहीं करते थे, वर्शिप नहीं करते थे, चर्च दिल की बात आगे ना तो जितने देखा मैंने गर्मी बहुत लग रही, मैंने गर्मी, फिर वो बाबरकत कराना नहीं है, वो कभी भी बाबरकत कराना नहीं हो सकता। बाइबल हमें सिखाती है, वो सब थोड़ा ठंडा हवा अच्छा भी पर कम सकते, लेकिन बाइबल में लिखा है वो घराना क्या था, और वो तारीख और बाइबल में खुद से लिखा है, और वो हसतरू था। और जब खुदा ने कहा हर शख्स ने अपना तरीका बिगाड़े ना, मैं दिल की ताकत चर्च आ गए या दिल की ताकत दिल की ये नहीं सब, ये हमारा फर्ज है, इसलिए हमने कभी समझा तो ये समझेंगे और वो बाबरकत घराना बन जाएगा। लेकिन बाइबल के अंदर लिखा है, और बाइबल बताती है कि जब नूह जो था खुदाने का दुनिया कश्ती बना रही, वो उसी मोहल्ले में रहता था जहां लोग जो थे और उन्होंने अपना तरीका बिगाड़ लिया था। तरीका ये अंकल को जो थे और वो गालियां निकालते थे, तरीका ये थे वो बाप को गालियां निकालते, तरीका ये था कि माँ बाप की इज्जत नहीं करते थे। लेकिन उलट हो गया था काम, इज्जत करनी थी लेकिन उलट हो गया था काम। लेकिन उसके दौरान बाइबल के अंदर लिखा है बड़ी असीयतों का उन्हें सामना करना पड़ा। लेकिन बाइबल एक और बात बताती है कि जब वो नूह जो था उसी मोहल्ले में, हम बात कर रहे थे जब बारिश हो रही थी, और नूह जो था उसी मोहल्ले में रहता था, उसी खानदान में रहता था, उसी इलाके में रहता था, लेकिन वो खुदा की वर्शिप नहीं छोड़ता था, वो खुदा की वर्शिप नहीं छोड़ता था, वो बाइबल पढ़ना नहीं छोड़ता था, वो खुदा की स्टोरी में जाना नहीं छोड़ता था। हाँ, वो तो इतना गंदा माहौल सी, और औरतों के साथ शादियां करते और मर्दों के साथ शादियां करते, लेकिन मर्द खुदा उसी मोहल्ले में आता, गुजर गया, शायद उसका घर मोहल्ले में ना हो, चौक में हो। अगर इधर से रहे तो मोहल्ले से गुजरना पड़े, इधर से रहे इधर। लेकिन बाइबल के अंदर लिखा है, बाइबल बताती है, लेकिन जब खुदा ने उससे कहा तो कश्ती बनाना है तो उससे बनाई कश्ती। लेकिन बाइबल में लिखा नूह जो रास्तबाज था और खुदा से डरता। हम पंजाबी में कहते हैं ना, किसी से लड़ो साड़ा के बिगाड़ ला दे, कहते हैं ना, हमारा खानदान ये। मैं आपको बताना चाहता, काश हम ये कहें हमारा कोई नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि खुदा हमारा है। लफ्ज़ी बदले, बरकत भी ज्यादा, खुदा भी खुश, हालेलुया। और हर शख्स खुदा का बंदा कहता है वो नूह जो था और वो रास्तबाज शख्स था और खुदा से डरता था। जब ऐलान किया कि मैंने 960 घंटे बारिश, आप पिछले दिनों 2 मिनट लाए से बारिश, हर बंदा हाथ जोड़न लग पिया, ऐसा है ना, 2 मिनट मैं ना नहीं तो निकलियो पानी ने के खोर चर्च की बाहर ही साइड पाया कि 2 मिनट किन्ने 960 घंटे बारिश हुई। कितने बोलो तो सही ना, इतनी नहीं होंगी पक्की गल नहीं होंगी, क्योंकि खुदा ने वादा कर दिया। गुड्डी गुड्डे ने पींग वेखी कदी, खुदा ने कि हुण मैं इंज नहीं मारने, हुण मैं मारांगा सही पर चुन के मारांगा सही पर इंज नहीं मारांगा, क्योंकि लिखा है कि जब 40 दिन 40 रात बारिश हुई तो लिखा इसके बनते हैं 960 घंटे। कितने बनते? 960 घंटे बारिश हुई। तो क्या जो मजाक करते थे ऐ बड़ा पादरी रब बहुत ही बस गया है, ऐसा जब कश्ती बनाते होंगे कश्ती को ठुंडे भी मारते होंगे ना, गुजरते हुए देखा नवा काम शुरू कर लगा है बड़ा भगत। लेकिन जब के अभी आधा घंटा नहीं हुआ तो आकर कहते हैं कश्ती में जगह है, कश्ती में जगह है, और एक चलो दबा वो कश्ती से जगह है, उसी अपने लिए बनाई है आन के भाई पैसा 2 सीटा है फ्रेंड दी 2 कई हो जाए सी। अच्छा बैक साइड लमकन है
बैक साइड पे पिछलियां सीटां ते नहीं ना कोई बैठा, वो तो भी आंदे हां सीटां तो ही ऐसी तीन है, लेकिन हजरत दूर कान में वो वक्त याद करो जब मैंने आपको कहा था बरकत घराना बनना है, खुदा से डरो, खुदा की बारगाह में हो, उसकी हजूरी में झुको, उसकी वर्शिप करो। तो भाई ने लिखा कोई नहीं बचा, आज लिखा है और हजरत नूह उसकी बीवी सम और याफत, ये 8 जाने थे। लेकिन मेरे बहनों मेरे भाइयों, अगर हम खुदा से नहीं डरते, हम रास्तबाज घराना नहीं है, हम बाबरकत घराना नहीं है। अगर बाबरकत बना है तो एक और बात है, बाबरकत घराने की पहचान क्या है? जो बाबरकत घराना हो वो गालियां नहीं देता, वो गालियां बोलो तो सी, वो गालियां उसकी ज़बान उलट होती है, उसकी ज़बान फर्क होती है। अगर भाई में मुकद्दस के अंदर एफसीओ का खत मेरे साथ कोई निकाले, एफसीओ का खत 5वां बाब उसकी 19 आयत, अगर किसी ने निकाल लिया है या निकालना है तो वो ऐसा खड़े हो जाए ताकि बाद में जो है इसको पढ़ेंगे, जिसने निकाल लिया होगा वो खड़ा हो जाए। लेकिन लिखा है कि उस घराने की पहचान क्या है? उड़ाते रहे ना, उसके बाद मोचियों वाले हथियार नहीं होते, उसके बाद सिरिंजे जड़ियां ड्रिप है और केंचे गोचियां, यदि जो उसका होता है। अगर एक ऐसे है दर्जी है, टेलर है, उसके पास एक मशीन होगी, हम उससे कभी जाकर कहेंगे जुत्ती का नोक टूटी जरा टांका दला दे, आखेंगे जा कहेंगे शर्ट यहां से तंग है सिलाई लगा दे, ऐसे कहेंगे ना, हमें वो काम करना है। लेकिन पहचान क्या है? इससे 5 बाब 19 आयत, क्या पहचान है घराने की? जो रास्तबाज घराना है। अगर रास्तबाज घराना बना तो आपको गुनाह, चोरी, चुगली, तकब्बर, बदकारी ये छोड़नी पड़ेगी। निकालिए किसी ने इससे 5 बाब 19 आयत निकालिए, या मैंने पढ़ना बहना? हाँ जी पढ़े आए। जो राष्ट्र भरे आपस में, द्वारा पढ़ो, आपस में मज़ामीर और गीत और रूहानी गज़लें गाया करो और दिल से गाया बजाया करो। आमीन, थैंक यू। ये है बाप बरकत घराने की पहचान। वो हर वक्त यही कहता रहेगा ना, वो यही कहेगा आप ही ऊपरों, वो यही कहेगा रब साडा, वो ये गालियां नहीं देगा। बाइबल में लिखा है और बाइबल बताती है कि रास्तबाज घराना बनने के लिए हमें यू टर्न लेना है, हमें कुछ और बनना है। अगर लोग हमें कहें हम यही कहेंगे जनाब अल्लाह ने लिखा वो रूहानी गज़लें मज़ामीर और गीत गाया करें। वो हर वक्त, अगर आप घराना बाबरकत बनना चाहते, आप चलते फिरते अपने घरों में गीतों का स्टार्ट करेंगे। फसल ना अपना काम करते हो, जो भी आप काम करते हैं वो ये करेंगे, ये गीत गाया करेगा, ये गीत समूह गाया करेंगे। लिखा वो गीत समूह गाया करे, ये उनकी पहचान। अच्छा तो इंग्लिश कोई गोरा है, वो फटाफट पंजाबी नहीं बोलेगा, वो आकर क्या बोलेगा? एक को दिवस सर्टिफिकेट गोरा आया सी, वो पर है सी काला साढ़े रंग ही, पर है गोरा सी, तो वो इंग्लिश बोलता, उसको पंजाबी, उसको उर्दू नहीं आती थी। यानी उसकी ज़बान से पता चला आपकी ज़बान रूहानी होनी चाहिए, आपकी ज़बान लैंग्वेज चेंज होनी चाहिए, आपकी ज़बान बदल जानी चाहिए। बदलने से मुराद ये है गीत हो, नगमा हो, हम्द हो, प्रस्तिश हो, दवा हो, रोज़ा हो, हर खुदा की तारीफ हो, खुदा की स्तुति हो, खुदा की वर्शिप हो, फिर है आप अमानदार और बाप बरकत करें। ये तो यकीन जाने चर्च आते रहेंगे, आना भी चाहिए, मैं लोगों को विजिट करता हूँ, बल्कि मैं कहता हूँ, लेकिन जब तक हम घराना चेंज होना चाहते हैं हमें रूहानी गज़लें गानी चाहिए। अच्छा है, तीसरी बात मैंने पहले बताया, कई बार सुबह उठ के गीत ला देने लाने चाहिए, लाने चाहिए ते ज्यों 9 बजे 10 अगों केड़ा काम शुरू हो जाता है। मेरा यार भी छड़िया, मैं क्या केड़ा भी छड़ गया है, वो तो हमसे बिछड़ता नहीं, जो हमारा यार है वो यीशु मसीह है। ठीक है, मैं तुझसे कभी जुड़ा
बोलो तो सही ना, मैं कभी तुमसे काश अब ये समझ, वो तो बिछड़ते नहीं है, वो बिछड़ता तो कई बार आप ला के तापा होर गाने लाशा नहीं। मेरी बहन मेरे भाई, और फिर हम बचाए बरकत को, हम लानत को खरीद लेते, खुदा हमारे मुखालिफ हो जाता है। आप मुझे अपने एक घर में बुलाए, तुसी कुर्सी तो पाओ तो मैनू टाट ते बताओ, मैं तक एक बार विजिट नहीं करांगा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੁਲਾਵਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਬਵੋ, मैं जरा कुर्सी दे बिना, ਤੁਸੀਂ कभी भी मेरे घर है। अच्छा, आप इंसान होते हुए ये नहीं करते, वो बादशाह होते हुए वो लाइक नहीं करेगा। हम अपना एटीट्यूड चेंज करें, अपना माहौल चेंज करें। जब हम अपना माहौल चेंज करेंगे, यकीन जाने देखे मेरा बेटा तबला बजा रहा था, लेकिन उसको भी इतना बजाना नहीं आता, लेकिन वो कोशिश कर रहा था, वो बजाने का कोशिश कर रहा था। मैं इससे अच्छे तरीके से बचाऊंगा। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जब आप कोशिश करते हैं, रूहानी गज़लें गाएंगे, गीत गाएंगे, सुबह दुला के शाम तक, अगली सुबह दुला के शाम तक फिर गीत ही चल। आमीन। अबली साढ़े घर दे विच की बीमारी, फिर तेरे घर विच फेरा, तेरे बनीस से साढ़े महल्ले च भी नहीं लंघना। उन्हें कहा कदी वेख्या, कदी वेख्या ऐसा हुआ कभी? बच्चे दित्ती होंदी तू तो लुकाया होता या नहीं? लेकिन बाइबल क्या कहती है? बाइबल में लिखा है, और बाइबल बताती है सुबह से शाम तक। मैंने बताया था एक मैसेज के अंदर, जब हसरत खुदा के बंदे ने बरकत ली थी सुलेमान, तो कितनी कुर्बानियां गुजरानी? 1000। कितनियां? तो सुबह तो शाम तक ही करदा ना, गीत ही करदा होना ना, 4000 साज बजदे होने, तो छुरी चलदी होनी, तो गीत तो फिर खुदा ने क्या मंग तेनू की चाहिए? काम उल्टे करने ते लैनियां ब्लैसियां है, गल एक भी नहीं मंगनी ते लैनियां, ऐसा नो, बाइबल में ऐसा नहीं है। लेकिन उसके बाद ऐसा तीसरी बात, हर वक्त दुआ करने वाला हो, जो कराना हो वो दुआ, उनकी फैमिली दुआ करने वाली। कई बारी भैन आ जाती तो भाई नहीं होंदा, उन्हें थाना समझिया होंदा चर्च नूं, जे चर्च आ जाए भाई आ जाए तो भैन नहीं होंदी। ये बात थोड़ी सी सख्त है, लेकिन आपके लिए और मेरे लिए फायदेमंद है। बाइबल क्या कहती? बाइबल में लिखा है, हर वक्त दुआ करने वाला और खैरात यानी शुक्रगुजारी करने वाला शख्स हो, ये घराना होना चाहिए। होना चाहिए या नहीं? ऐसा करा। अमाल की किताब ऐसा 10 बाब के अंदर लिखा, कर्नेलियस एक शख्स था। कर्नेलियस वो रास्तबाज, ईमान की किताब 10 बाब में लिखा है, वो रास्तबाज शख्स था, और लेकिन खुदा से डरता था, और वो रोया देखने वाला था। वो तो खुदा से डर, जब आप खुदा से डरेंगे, आप बात पर करोगे, खुदा रोया में कलाम करेगा, खुदा के साथ बात करेगा, खुदा के साथ जो है वो कलाम करेगा। फिर खुदा आपसे कहेगा तू सीधे पासे जाना। यहाँ कर्नेलियस ने जब दुआ की, रोया में देखा पतरस फलाने बंदा के घर में, उससे बुलाओ दुआ करवा। किसने कहा? रूहुल कुद्स ने। किसने कहा? खुदा ने कहा। क्यों? क्योंकि वो खुदा से डरता था और रास्तबाज था, और वो गीत गाता था, हर वक्त कवायर उसके घर के अंदर रहती थी, हर वक्त वो दुआ में रहता था, और फिर का वो खैरात भी करता था, और शुक्रगुजारियां और हदियां जो है वो चर्च में देता था। आमीन। तो फिर खुदा बोला ही ना, खुदा ने यूनिवर्सिटी किसी, खुदा ने कहा फलाने पादी नूं सद नहीं, केड़े सदना? किसी नशीन ना सद ली। खुदा ने यूनिवर्सिटी किसी की, पतरस, तो पतरस को की कर रहा सी? आ भी गल सुन लो, पतरस कोठे ते चढ़ के दुआ कर लिया। पतरस की करते कोठे ते चढ़ के, तो पतरस को भी रूह ने कहा। फिर बाइबल लिखा, जब आवाज और सांस यानी जब कॉल से कॉल मिल जाती, बात तब के लिए होती है नहीं। अगर काल ना मिले तो हम बहन भाई के साथ बात नहीं कर सकते, आवाज कट कर दी। और कर्नेलियस की और रूहुल कुद्स की और रूहुल कुद्स की पतरस के साथ काल मिल गई, और उस इधर से कहा पतरस को बुला, उधर पतरस को कहा कर्नेलियस आया, क्योंकि ये रास्तबाज और बरकत कराना था। आमीन। और फिर एक और बात जो है वो सुनिएगा, लास्ट बात आप सबों के लिए। और बाबरकत कराने में एक मस्बा यानी एक जगह दुआ करने वाली होनी चाहिए। आपके घर के अंदर 2 कमरे हैं, तो कमरा बनाए एक जगह। आपको पता जहां प्रेयर करें वहां 2 कमरे हुआ करते थे पहले। उस वक्त हमारे पास प्रेयर रूम नहीं था,
लेकिन हमने बड़ा कमरा जो था और वो हमने दुआ के लिए रखा हुआ था। आप जिस भी घर में हैं, आप एक जगह महसूस करें। आपको पता है बाइबल बताती है और बाइबल के अंदर लिखा है कि हमारे मसबे पर आग जलती रहनी चाहिए। जब जल्दी आग से मरा दिया है खुदा की हसूरी, खुदा का मस्सा, खुदा का शोर, खुदा की कुदरत, खुदा की अनॉइंटिंग। मैंने बताया था कि ऐसे हर पात्री मकान के अंदर एक आहत का संदूक होता था। आहत के संदूक को करूबी होते थे और उसके ऊपर एक कपड़ा होता था और कपड़े के ऊपर शिकायना होता था, शिकायना के ऊपर खुदा होता। मेरे खुदा उते की करता सी ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਖਲੋਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮਾਰੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਪੂਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਖੁਦਾ ਇੱਥੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ। ऐसा होता था, ऐसा होता, लेकिन फिर भी खुदा बोलता था। और खुद दो पत्थर काहे ने रखे थे, ये आपके लिए नई बात है, नई बात आपके लिए भी नई बात है। दो पत्थर होते थे, क्या होते थे? और उसको कहते तोरीम और रीम, तोरीम और वो काहिन के दिल के ऊपर होते थे। खुदा उसके जरिए सिग्नल देता था। दो सिमा मोबाइल से है या नहीं? वो बोलो थी मेरे थे नहीं टाडे, तो फिर बोलो एक तो क्यों डाल दे टैक्स लग दिया है ना, जय स्टैलिन योंग है फलाम 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 भारत फलाम फलाम है नहीं, शुद्ध सिमें होती थी और वो उसके नाम था तोरीम ओरीम, ओरीम और तोरीम। तोरीम पत्थर होते थे, खुदा सिग्नल के साथ कलाम करता था। मेरी बहन मेरे भाई, अगर हमने बाबरकत घराना बनना है तो हमें एक काम करना चाहिए, वो काम यह है मस्जिद के ऊपर आग जलती रहनी चाहिए। जब रसूल ने कलाम को कबूल किया ना तो मोजज़ात ऐसे नहीं होते सी। जरा गाल सुने, सारी रात दुआ में गुजर जाती। लिखा है वो पूरी रात हैकल में रहते। और उसके बाद एक और बात जो सुनिएगा, वो मैं पुलपट पे जाके आई पढ़ूंगा। लिखा है वो हर रोज, बाजी तो सवाल पूछ दे दो, हर रोज वो शाम को रोटी तोड़ते थे। क्या करते थे? अपने हैकल के अंदर भी इबादत करके तो अपने अपने घर जाके इबादत कर दे तो रोटी तोड़ दे सी तो दुआ कर दे सी। आमीन, ताकि मसबा चलता रहे। आमीन। आइए इमाल की किताब उसका 2 बाब उसकी 46 और ऐसे 47 कलाम मुक़द्दस में लिखा है। ये बात बड़ी गौर तलब है। तलब ये है कि हमने कैसे अपने मसबा के अपने घर में रहना है, कैसे बरकत घराना बन सकते हैं। मैं पढ़ने लगा 46 से, लेकिन सबको बांट दिया करते थे। हर रोज एक दिल होकर हैकल में जो जमा हुआ करते थे। एक दिल होकर कहाँ जमा हुआ करते थे? हैकल में। ऊंची बोलना बहनों, लास्ट बात है। लिखा है और हर रोज एक दिल होकर हैकल में जमा हुआ करते और घरों में रोटी तोड़कर खुशी और सादा दिली से खाना खाया करते थे। आगे सुनिए क्या लिखा है, और खुदा की हम्द करते और सब लोगों को अजीज थे। और लिखा है कि जो लिखा है कि नजात पाते थे उनको खुदा हर रोज उनमें मिला देता था। ऐसे है 44 आदमी लिखा है, हर शख्स पर खौफ छा गया। किसका खौफ? खुदा का। और बहुत से मुअज्जिज़ात काम निशान नबियों के रू उनके वसीला से होते थे, क्योंकि वो हर रोज दुआ में होते थे। क्या होते थे? फिर तापा की सिर पीड़ भी आख ना चली जाओ कि नहीं नसा फैला के जावांगी तट इंज नहीं मैं जाना। अगर आप दूर खड़े होकर कहेंगे ऐसी तेरी जरूरत क्या है, हालेलुया, दुआ आपकी सुनी जाएगी, मसला हल हो जाएगा, लेकिन खुदा आपको टाइम देगा। आमीन आमीन। क्योंकि बाबर कदम इसलिए लिखा है यीशु ने कहा अब रही मेरी और मेरे घराने की बात। हम किसकी परस्तिश करेंगे? खुदा की परस्तिश करेंगे। पूरा खानदान चर्च हो, पूरा परिवार दुआ में रात को ठहरो, पूरे खानदान रोशे में ठहरो, पूरे बाइबल पढ़ो और दुआ में ठहरो। बच्चों को साथ लो। तेरे गलियां से बच्चे नहीं लबन दे, फिर गाला काट देना, फिर आपको गाल कटेगा कि गॉड ब्लेस यू, क्योंकि हम सिखाएंगे, हम आगे बढ़ेंगे, हम दुआ में जब ठहरेंगे। हम दुआ हमारे साढ़े को एक बंदा आया, गलती मेरी, मैं आनू आखे कि चल घुटने टेक के दुआ करिए। वो 3 साल हो गया बड़े ही नहीं चर्च, वो बीबी आ जाती, बच्चे आ जाते, मैं पूछा क्यों नहीं आता,
انہیں کیا کام بڑا ہو کر میں کہ یار چل تو نان ٹھیکی جو چونکڑی مار کے بیٹھی میں کہا دلی یہ کٹنے ڈیکل دیکھیں اس کا بھلا تھا لیکن وہ سمجھ نہیں پایا وہ پک نہیں کیا اس نے لیکن رسول ہر روز اور جو ایماندار سارے نبی تو نہیں تھے سارے پیغمبر تو نہیں تھے سارے پادری تو نہیں تھے کلیسیا ہر روز بیٹھ جاتی تھی دعا میں اپنے اپنے گھروں میں انہوں نے مذہبیں بنائے ہوئے تھے کہ آج پرومس کرنے کا خداوند ہم اپنے گھر کے اندر ایک جگہ مقرر کریں گے تاکہ ہم صبح اٹھ کے وہاں تیری حضوری میں جھکا کریں آمین کہ بائبل کہتی ہے خروج اس کے 23ویں باب کے اندر لکھا ہے تو میری عبادت کرو میں تمہاری روٹی اور پانی بھر دوں یہ پرومس ہے یہ وعدہ میرا نہیں ہے پاسٹر نوید کا نہیں ہے کسی اور بندے کا نہیں یہ پرومس خدا کا ہے یہ وعدہ یہوہ کا ہے یہ شلوم خدا کا ہے جس نے کراس کے اوپر اپنے بیٹے کو میرے اور آپ کے لیے دیا تاکہ ہم بچائے جا سکیں تم میری عبادت کرو میں تمہاری روٹی اور پانی بھر برکت دوں گا ہر روز میری بارگاہ میں ہو ہر دوپہر ہم کتنے ٹائم روٹی کھاتے کتنے ٹائم 3 ٹائم 2 ٹائم ہمیں دعا بھی اتنی کرنی چاہیے کیونکہ ہماری باڈی تو کھانا کھاتی ہماری روح پیاسی اور بھوکی رہتی ہے اس کی خوراک خدا کا کلام ہے اس کی خوراک دعا ہے اس کی خوراک روزہ ہے اس کی خوراک پریز کیری ہے اس کی خوراک مٹھی ہے اس کی خوراک جو ہے راست بازی ہے اس کی خوراک جو ہے ایمانداری ہے اس کی خوراک دینداری ہے اس کی خوراک جو ہے وہ خدا کا ڈر اور خدا کا خوف ہے پر دیکھیں آپ خود بھی آئیں گے کہیں گے صاحب اگلے مہینے آ کام ہو گیا اگلے مہینے آ گیا یہ رکا سارے مسئلے خدا حل کر دے گا کیونکہ وہ یہوہ خدا ہے زوردار تالی اس کے جلال ہم سب کو بڑی بڑی آمین